जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, अभी हम अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। इन दिस चैप्टर बेसिकली वी विल ट्राई टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स that we have learned in the time value of money chapter in the previous chapter. Basically, this chapter is divided into four different parts. Uh, First of all, we will discuss about the valuation concepts. We will talk about the valuation of the firm, then the valuation of the securities. Then we will move to the bonds valuation, followed by preferred stock valuation, and lastly, we will try to cover the common stock valuation. So quickly moving to the part one, which is the valuation concepts. Basically, when we are talking about the valuation, valuation means that the value of a firm or an asset at any particular time or event. Either we are going to sell the assets or we are going to purchase the assets or the firm. So for the purpose of valuation, we categorize the valuation into two different categories. Number one is the valuation of the firm. The second one is the valuation of the securities. When we are particularly talking about the valuation of the firm, it means that whenever we want to sell the business or we want to purchase the business or we are going to wind up the business, there are four kinds of values involved, or we are concerned with four types of values. Number one is the liquidation value, then we will second one is the going concern value, third one is the book value, and the market value. Liquidation value is basically the value of a particular firm or a business calculated at the time of liquidation of the firm, or whenever we are going to wind up the business. The value that we can recover from the sale or we can realize from the assets or a group of assets at the time of liquidation of the firm is called the liquidation value of the firm. The second one is the going concern value. Going concern value is basically the value of a running business. The amount for which a firm could be sold out as the continuing operating business is called the going concern value of the business. It is the basically the amount that could be realized from the sale of an operating business. It is not linked with the liquidation or with the winding up of the business. It is basically the value of a running business कि जब हम तो बिजनेस अपना सेल आउट कर रहे हैं और रनिंग बिजनेस है वो हम सेल आउट कर रहे हैं, तो उस टाइम जो भी उसकी वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं, दैट वैल्यू इज कॉल्ड दी गोइंग कंसर्न वैल्यू. The third one is the book value. Book value is basically the value of the firm which is available in the books of accounts. It is normally called as the accounting value of a particular business. It is the value of the firm or the total worth of the business in the books of accounts. So basically, balance sheet is the statement, is the financial statement through which we calculate the financial position of the business. Financial position of the business tells us that where we are standing at any particular time period. तो बेसिकली हम क्या करते होते हैं, अगर हमने बुक वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है जिसको हम नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस भी बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, एसेट्स में से हम लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं. लाइबिलिटीज आर आवर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग. एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दें, द रिमेनिंग पार्ट विल बी दी ऑनर्स इक्विटी. That owner's equity referred to as book value of the firm or the net worth of the business. The market value of the firm is basically the when we will add the goodwill in the book value of the firm, that will be resulted in the form of market value. The price that which at which the assets can be traded in the market is called the market value, or we can say that the market price of the asset is called the market value, which we can recover at the time of selling of the assets. अच्छा, हम इसकी एक छोटी सी अगर हम एग्जांपल लें, वहां से हमें थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे जो हमने बुक वैल्यू कैलकुलेट की, हमारे टोटल एसेट्स थे 10 लाख के और 6 लाख की फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइबिलिटीज थी, वो हम पे ऑफ करेंगे तो बाकी हमारी क्या रहेगी कि नेटवर्थ रहेगी कि विच विल बी 4 लाख. अच्छा, हमने अगर अब फॉर एग्जांपल इसको सेल आउट करना है, तो सेल आउट करने के लिए हम अगर डिमांड करते हैं 6 लाख तो हमारी नेटवर्थ है, तो हम उससे ऊपर जितना भी उनसे डिमांड करेंगे वो किस फॉर्म में हम डिमांड करेंगे या उसको हम क्या नाम देंगे, वी विल नेम इट एज अ गुडविल. हम कह सकते हैं कि we have spent several years at that particular place for which we have created a market share in that premises. So for that market share we will demand some extra amount in the form of goodwill. So we will add up book value with the book value with the goodwill, that will result in the form of market value of the firm. तो ये चार तरह की हमारी वैल्यूज होती हैं ओवरऑल हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव में बात करें. अगर हम स्पेसिफिकली वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज की बात करते हैं, विच इज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर एज वेल, तो उसकी भी हमारे पास चार तरह की वैल्यूज होती हैं.
Number one is the par value, then we have discounted value, then we have premium value, और lastly we have intrinsic value. par value क्या होती है? It is basically the face value of a particular security. अच्छा, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटीज मीन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हमारी क्या होती है? फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं. फाइनेंशियल एसेट्स आर ऑल दोज एसेट्स हु ओनली हैव द पेपर एग्जिस्टेंस, जिनकी सिर्फ और सिर्फ पेपर एग्जिस्टेंस होती है, दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस. तो इन द शॉर्ट फॉर्म वी नेम देम एज अ सिक्योरिटीज इन जनरल. अब इसमें क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं? इसमें बॉन्ड्स भी आ जाएंगे, डिबेंचर्स भी आ जाएंगे, कॉमन स्टॉक भी आ जाएंगे, प्रेफर्ड स्टॉक भी आ जाएंगे, ये सारे के सारे हम ओवरऑल इनकम सिक्योरिटीज हम बोल देते हैं. तो पार वैल्यू क्या होती है? इट इज द फेस वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी. The value which is written on the on that security is called the par value. If that security is being issued or is traded above the par value, then it will be treated as a premium value. And if that particular security is treated below the par value or issued below the par value, then it will be treated as the discounted value. Last one is the intrinsic value. Intrinsic value is basically the original value of a particular security. Original value. अब ओरिजिनल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज बेसिकली द प्राइस एट सिक्योरिटी और टू हैव बेस्ड ऑन ऑल फैक्टर्स बियरिंग ऑन वैल्यूएशन. फॉर एग्जांपल, अगर हमने इसे कोई सेल कर रहे हैं, उसके अंदर हमें फ्यूचर में कुछ अर्निंग्स आनी है, रिटर्न जनरेट होनी है, तो वो सारे के सारे पर्सपेक्टिव हम अपने माइंड में रख के जो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द इंटरेस्टिंग वैल्यू. अच्छा जी, अगर हम वैल्यूएशन, हमने ये डिस्कस किया कि दो तरह के वैल्यूएशन होती है, एक वैल्यूएशन ऑफ द फर्म और सेकंडली वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटीज. तो उसमें चार चार तरह के वैल्यूज हम कैलकुलेट करते होते हैं. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटीज, उसमें जो लास्ट वन हमने डिस्कस किया था, इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम द इन्वेस्टर परस्पेक्टिव. क्योंकि जब इन्वेस्टर्स ने किसी शेयर्स में या बॉन्ड्स डिबेंचर्स में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो वो सबसे पहले उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. इंट्रिंसिक वैल्यू को फिर वो मार्केट प्राइस के साथ कंपैरिजन करके फिर उनको आइडिया होता है कि वेदर द मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज इन लाइन विद द फ्यूचर रिटर्न और नॉट, whether it is overpriced or whether it is underpriced or whether it represents the true picture of the market conditions. तो अगर तो हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू हो, इंट्रिंसिक वैल्यू इसको हम नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू. तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू मार्केट प्राइस और कैलकुलेटेड वैल्यू का कंपैरिजन हमने करके देखेंगे, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मार्केट प्राइस कम है, इट मीन्स इन द मार्केट द सिक्योरिटी इज अंडर प्राइस, तो हम फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे. और अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, देन इट मीन्स दैट इन द मार्केट द प्राइस ऑफ दैट सिक्योरिटी इज ओवर प्राइस्ड, तो हम फिर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते. तो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज टू डिसाइड अबाउट मेकिंग अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट और नॉट. तो ये वैल्यूएशन होता है. अब दूसरा जो हमारे इस चैप्टर का वर्ड था सिक्योरिटीज का, सिक्योरिटीज को हमने डिफाइन किया कि सिक्योरिटीज क्या होती हैं. दीज आर द फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट्स आर ऑल दोज एसेट्स हु ओनली हैव द पेपर एग्जिस्टेंस and they don't have any physical existence. तो बेसिकली हम जो, बिकॉज हमारी दो तरह की सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग होती है सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, हमने क्या करना होता है? अपने फंड्स रेज करनी होती हैं. तो दो तरह की फाइनेंसिंग होती है, डेट सिक्योरिटीज और इक्विटी सिक्योरिटी. हमारे होते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग. तो इंटरनल सोर्सेज से हम जो फंड अरेज करेंगे, वी विल नेम देम एज इक्विटी सिक्योरिटीज. और अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज से फंड रेज करते हैं, तो उसको हम फिर डेट सिक्योरिटीज बोलते हैं. ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज में, इन दोनों कैटेगरीज की सिक्योरिटीज की फिर हमने वैल्यूएशन करनी होती है. वैल्यूएशन करनी होती है वन बाय वन, हम थोड़ा सा इनको डिफाइन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इनके आगे फर्दर टाइप्स कौन सी हैं, फिर आगे इनकी वन बाय वन हम वैल्यूएशन की तरफ जाएंगे. डेट सिक्योरिटीज आर बेसिकली दीज आर द रिटन डॉक्यूमेंट दैट represents the claim over the assets of the other organization, having no right on the decision making and no voting right for its holders. They are called the debt securities. और अगर हम इसके एग्जांपल लें, उसमें बॉन्ड्स आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे. बॉन्ड्स बेसिकली दे आर जस्ट लाइक द लोन फॉर द बिजनेस. तो बट दे हैव द पेपर एग्जिस्टेंस ओनली. तो डेट सिक्योरिटीज में हम क्या करते हैं जी, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता. दे आर जस्ट लाइक द क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस.
इक्विटी सिक्योरिटीज क्या होती हैं? दीज आर दी बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट्स दैट signifies an ownership position in a corporation and represents a claim on its proportional share in the corporation's assets and profits. So basically, through equity securities, we will become the owners of the business. Ownership of the company is determined by the number of shares a person owns divided by the total number of shares outstanding. तो दो तरह से जो लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट करेंगी ये सिक्योरिटीज हम नाम देंगे कि डेट सिक्योरिटीज, जो इक्विटी को रिप्रेजेंट करेंगी हम उसको नाम देंगे जी इक्विटी सिक्योरिटीज का हम देंगे। नेक्स्ट इसके आगे फर्दर क्या क्या टाइप्स होती हैं बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की। अगर हम बात करें डेट सिक्योरिटीज की स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो हमने पीछे वर्ड एक यूज किया डेट सिक्योरिटीज में बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी है कि ताकि हम उसको आगे कंसेप्चुअली चीजों को लेकर चलें। बॉन्ड्स आर बेसिकली दो सिक्योरिटीज इन विच वेन एवर द कंपनी इज इशूइंग बॉन्ड्स द कंपनी हैज टू डिस्क्लोज द पर्पस ऑफ यूजिंग these funds, that while whenever the company is issuing debentures, the company will not disclose the objective of issuing these securities. तो बॉन्ड्स के केस में ऑब्जेक्टिव मेंशन किया जाता है लेकिन डिबेंचर्स के केस में ऑब्जेक्टिव मेंशन नहीं किया जाता है। तो फ्रॉम द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज ए लेस रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स एज कंपेयर टू डिबेंचर्स। और हमने चैप्टर में रिस्क रिटर्न वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर हमारा किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा हो तो हमें रिटर्न भी ज्यादा आता है, रिस्क कम हो तो रिटर्न भी कम होता है। तो डिवेंचर चूंकि ज्यादा रिस्की होते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें ज्यादा मिलता है, और अगर बॉन्ड्स के ऊपर रिस्क कम होता है तो उसके ऊपर हमें रिटर्न भी कम मिलता है। तो कॉन्सेप्चुअली तो ये इनका डिफरेंस था। फ्रॉम द कैलकुलेशन परस्पेक्टिव या मैथमेटिकली जब हमने इसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है तो उसमें फिर हम इनको एक ही प्रोसीजर से हमारी इनकी वैल्यूएशन होती है। ठीक है, तो हम उसको चाहे बॉन्ड्स कह लें चाहे डिफेंसेस कह लें, लेकिन उनकी वैल्यूएशन सारी कंसेप्चुअली दे आर डिफरेंट, बट मैथमेटिकली हम उसको वन एंड सेम थिंग ट्रीट करते हैं। फ्रॉम द कैलकुलेशन परस्पेक्टिव हम इनको फर्दर फिर कैटेगराइज करते हैं तीन कैटेगरीज में। हम उनको नाम देते हैं नंबर वन इज द परपेचुअल बॉन्ड्स, नंबर टू इज द नॉन परपेचुअल बॉन्ड्स, फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स आ जाते हैं। परपेचुअल बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स विच विल नेवर मेच्योर, they have infinity time periods, or in other words we can simply say that they are perpetuities in the form of bonds। तो उसके ऊपर हमें जब देखें इसका मैकेनिज्म हमने अंडरस्टैंड करना है। हमने फॉर एग्जांपल को एक बॉन्ड परचेज किया जिसके ऊपर हमें फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। हमने परचेज कर लिया फॉर एग्जांपल 1000 का बॉन्ड था उसके ऊपर 10% हमें उसके ऊपर रिटर्न हमें मिलेगा। तो हमने एक साल के बाद हमने बॉन्ड परचेज किया, एक साल के बाद उसके ऊपर 10% हमें रिटर्न जनरेट हो जाएगा विच विल बी 100 रुपीज। दूसरा साल आएगा फिर अगेन 100, फिर थर्ड ईयर अगेन 100। और जब उसके मेच्योरिटी टाइम पीरियड आएगा तो हमें उस साल हमें इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है, तो हमें फेस वैल्यू कंपनी वापस कॉल बैक कर लेगी, तो हम कंपनी को वापस रिटर्न करके तो उसकी फेस वैल्यू भी रिकवर कर लेते हैं। तो मैक्सिमम बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो मैक्सिमम हमें दो तरह के रिटर्न जनरेट होती हैं। एक तो पीरियोडिक रिटर्न होता है जिसको हम इंटरेस्ट अमाउंट बोल देते हैं, सेकंडली हमें फेस वैल्यू भी रिकवर हो जाती है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। परपेचुअल बॉन्ड्स जो कि फॉर एवर लाइफ के लिए इशू किए जाते हैं, इसका कोई मेच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं होता, तो इसमें फिर हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलता रहता है, हमें फेस वैल्यू कभी भी रिकवर नहीं होती। नॉन परपेचुअल बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जो परपेचुअल नहीं होते। दीज आर द बॉन्ड्स दैट हैव अ स्पेसिफिक टाइम टू मेच्योरिटी। अब इट मीन्स कि इनिशियली दे आर इशूड विद अ स्पेसिफिक टाइम टू मेच्योरिटी। क्या आप वो 5 साल के लिए इशू किए जा सकते हैं, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए कंपनी इशू कर सकती है। इट मीन्स कि जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कंपनी को वो बॉन्ड रिटर्न करके तो उसकी फेस वैल्यू भी रिकवर कर सकते हैं। तो नॉन प्रोफेशनल बॉन्ड्स के केस में फिर हमें दो रिटर्न जनरेट होते हैं, एक हमारा फिक्स रिटर्न मिलता रहता है और सेकंडली हमें उसके ऊपर आपको फेस वैल्यू भी रिकवर हो जाती है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। थर्ड वन हमारा आ जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड बेसिकली दीज आर दोज बॉन्ड्स दैट हैव स्पेसिफिक मेच्योरिटी टाइम पीरियड but they are interest free bonds. No interest will be deducted on these bonds, only the face value can be realized at the time of maturity। अब देर इज अ क्वेश्चन अराइजेस कि अगर इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर ये इसमें लोग इन्वेस्टमेंट ही क्यों करेंगे? तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि नॉर्मली दीज बॉन्ड्स आर इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइसेस। कि अगर 1000 का बॉन्ड है, फेस वैल्यू उसकी 1000 है, तो वो हो सकता है 500 600 या 700 रुपये का इशू किया जाए। तो अगर मैं उसको परचेज करता हूँ 700 का तो 5 साल उसके मेच्योरिटी टाइम पीरियड है, तो आई विल गेट दी फुल फेस वैल्यू एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो दिस इज द रीजन जीरो कूपन बॉन्ड्स आर आल्सो। तो अगर हम इन तीनों को अगर आप आपस में अगर हम कंपैरिजन करें, परपेचुअल बॉन्ड्स के केस में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है फॉर एवर,
जीरो कूपन बॉन्ड के केस में इंटरेस्ट नहीं मिलता, सिर्फ फेस वैल्यू मिलती है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। जब आपके नॉन परपेचुअल बॉन्ड्स के केस में दोनों रिटर्न मिलते हैं, आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा होता है और मेच्योरिटी टाइम पीरियड पे आपको फिर फेस वैल्यू भी रिकवर हो जाती है। तो हमने सिंपली क्या करना होता है, इसकी जब वैल्यूएशन करनी है तो हमने इसके कैश फ्लोज का या इसके रिटर्न का पैटर्न डिफाइन करना है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले कॉन्सेप्ट में से देख लेना है कि कौन सा फार्मूला इधर अप्लाई होगा, वो अप्लाई करके फिर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। सेकंड कैटेगरी आ जाती है हमारी इक्विटी सिक्योरिटीज की। इक्विटी सिक्योरिटीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं। नंबर वन इज दी प्रेफर स्टॉक, नंबर सेकंड इज दी कॉमन स्टॉक। Preferred stock are basically these are the capital stock which provide a specific dividend that is paid before any dividend are paid to the common stockholders. So preferred stockholders, they will get a return on priority basis as compared to common stockholders, but they don't have any, they are considered as the owners of the business, but they are not considered as the real owners of the business. Real owners of the business in which sense, कि क्यों इनको ट्रेड नहीं किया जाता, बिकॉज दे डोंट हैव एनी वोटिंग पावर, they don't have any voting right to select the board of directors at time of annual general meeting. Secondly क्या होता है, they don't have any residual claim, उनका residual claim भी नहीं होता। Residual claim in which sense, because whenever the company is going for the liquidation, रेजुलर क्लेम दो जगह पे वो एक्सरसाइज कर सकती है। नंबर वन एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, नंबर सेकंड एट द टाइम ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द बिजनेस। एट द टाइम ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द बिजनेस किस तरह से रेजुलर क्लेम कॉमन स्टॉक होल्डर का होता है जी, कि जब बिजनेस सेल आउट कर दिया जाएगा सबसे पहले बाकी सारे फंडिंग पे करने के बाद सबकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर दी जाएगी। एंड में जो बच जाती है, जितनी भी अमाउंट बच जाएगी, सबसे पहले लोन होल्डर्स को रिटर्न कर दिया जाएगा उनकी अमाउंट, देन गवर्नमेंट फीस पे कर दी जाती है, देन कोई प्रेफर स्टॉक होंगे तो उनको रिटर्न कर दिया जाएगा, फिर कॉमन स्टॉक की अमाउंट उनको रिटर्न कर, अगर फिर भी कोई अमाउंट बच गई है सबको पेमेंट करने के बाद, तो उसके ऊपर किसका राइट होगा, वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स का होगा, नॉट नॉट दी प्रेफर स्टॉक होल्डर्स। और सेम एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी इसी तरह से होता है। अगर हम इनकम स्टेटमेंट को अपने माइंड में लाएं तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सेल में से एक्सपेंडिचर माइनस करके हमारा क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है, विच वी नेम एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट अमाउंट पे करनी होती है टू आवर क्रेडिटर्स। सेकेंडली फिर हमने क्या करना होता है, गवर्नमेंट फीस के पे करनी होती है इन दी फॉर्म ऑफ टैक्सेस। उसके बाद जो नेट इनकम आ जाती है तो उसमें से सबसे पहले हम पे करते होते हैं प्रेफर स्टॉक डिविडेंड, हम पे करते हैं। वो पे करने के बाद फिर हम कॉमन स्टॉक डिविडेंड पे करते हैं, और बाकी जो बच जाता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होती हैं। उसके ऊपर किसका राइट होता है, कॉमन स्टॉक होल्डर का राइट होता है, नॉट द प्रेफर स्टॉक होल्डर। अब वो चाहे तो उसको बिजनेस में दोबारा री इन्वेस्ट कर दें या फिर दोबारा आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। री इन्वेस्ट करेंगे तो उसको हम रिटेन अर्निंग कह देते हैं, और अगर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसको बोनस शेयर या कुछ भी आप उसको डिविडेंड आप बोल सकते हैं, बोनस डिविडेंड बोल सकते हैं या एक्स्ट्रा डिविडेंड बोल सकते हैं। तो ये हमारा प्रेफर स्टॉक और कॉमन स्टॉक का थोड़ा सा डिफरेंस था। अगर हम प्रेफर स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करें तो उसमें फिर हम दो तरह से नॉर्मली हम प्रेफर स्टॉक को कैटेगराइज कर देते हैं। नंबर वन हम कह देते हैं जी ऑल दोज प्रेफर स्टॉक, या इनको हम बोलते हैं जी कॉलेबल प्रेफर स्टॉक। सेकंड वन इज द नॉन कॉलेबल प्रेफर स्टॉक। नॉन कॉलेबल प्रेफर स्टॉक आर दोज प्रेफर स्टॉक इन विच they will continue forever, in which the company don't have any right to call back these preferred stock after a specific time period. While in case of a callable preferred stock, the company retain the right टू कॉल बैक द प्रेफरेंस स्टॉक एनी टाइम आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो इनिशियली तो ये दोनों जो प्रेफरेंस स्टॉक होते हैं वो फॉर एवर लाइफ के लिए ही इशू किए, क्योंकि इक्विटी सिक्योरिटीज होती हैं। लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजन कंपनी क्या एज अ पार्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, कंपनी क्या करती है, अपने पास एक राइट रख लेती है कि जी कंपनी कैन कॉल बैक द प्रेफरेंस स्टॉक एनी टाइम आफ्टर 4 years और आफ्टर 5 years और 7 years। अब इसमें इसका फायदा क्या होता है कंपनी को, कि इनिशियली तो कंपनी को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, उन्होंने प्रेफरेंस स्टॉक इशू किए और अपनी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया। अब करने के बाद हो सकता है 4 साल 5 साल के बाद अब उनको फंडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि वो फॉरएवर लाइफ के लिए इशू किए हुए हैं तो उनको कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक डिविडेंड। तो इट मींस कि वो कंपनी हमेशा फिर उसकी कॉस्ट पे करती रहेगी। अब इस केस के लिए, इस एक्स्ट्रा कॉस्ट से अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए कंपनी क्या करती है, टर्म्स एंड कंडीशन में इस तरह की कंडीशन डाल देती हैं कि कंपनी किसी टाइम भी आफ्टर 5 years और आफ्टर 10 years कंपनी किसी टाइम भी कॉल बैक कर सकती है विद प्रायर नोटिस। तो अगर इस तरह का कोई प्रेफरेंस स्टॉक होगा इसको हम बोलेंगे कॉलेबल प्रेफरेंस स्टॉक। अगर इस तरह की कंडीशन नहीं है तो फिर वो फॉर एवर ही चलता रहेगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हेन नो कॉल इज एक्सपेक्टेड, तो उसको हम नॉन कॉलेबल प्रेफरेंस स्टॉक हम बोलेंगे। सेकेंडली फिर हमारे आ जाता है जी कॉमन स्टॉक।
Common stockholders are basically the real owners of the business. Real owners of the business mean to say that they have full right to participate in the decision making process of the business. They can become the board of directors. They have the residual claim. तो ये हमारे कुछ इसकी क्रैक्स है। जो प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर होती हैं दे आर आल्सो कॉल्ड द हाइब्रिड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। हाइब्रिड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इन दैट सेंस बिकॉज दे कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज मीन कि उनका फिक्स रिटर्न होता है, और इक्विटी सिक्योरिटीज मीन कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जी वो फॉर एवर लाइफ के लिए इशू की जाती हैं। तो जनरली स्पीकिंग प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो कॉमन स्टॉक की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो दीज आर दोज सिक्योरिटीज रिप्रेजेंटिंग द इक्विटी ओनरशिप इन अ कॉर्पोरेशन, प्रोवाइडिंग वोटिंग राइट्स एंड entitling the holders to assure or to assure holder of the company's success through dividend. In the event of liquidation, common stockholders have right to the company's assets only after the bondholders, other debt holders and preference stockholders. सबसे लास्ट में common stockholders को मिला जाता है, but they have the residual claim. The common stockholders have residual claim in the profits of the business and at the time of default of the company. तो ये इसमें होता है।